डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कभी किसी दौर में बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी छुपा लिया जाता था। बड़े से बड़े झूठ को सच में और सच को झूठ में आसानी से बदल दिया जाता था। पर आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते ऐसा कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। इस्लामिक कल्ट ने पूरी दुनिया को बहुत बेवकूफ़ बनाया। अपनी किताबों में लिखी गंदगी को हर एक से छुपा कर रखा। पर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस कल्ट की सारी गंदगी को सबके सामने खोल कर रख दिया है। पूरी दुनिया के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक कल्ट के खात्मे का कारण बन चुकी है। बिना तीर तलवार चलाए इस कल्ट को जितनी चोट इंटरनेट ने पहुंचाई है, इतनी चोट आज तक कोई नहीं दे पाया है। इस कल्ट ने सबसे ज्यादा औरतों को जलील किया है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। इस अरेबी कल्ट के मानने वाले लोगों ने अपने ही घर की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। जब जब इन लोगों को मौका मिला, उनकी इज्जत तार तार करके रख दिया। औरतों को गुलाम बनाकर रखने वाली और औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह खरीदने और बेचने वाली मानसिकता कहां से आती है, आज हर कोई जानने लगा है। प्रीटी ह्यूमन जैसी महिलाओं ने इस दंश को झेला है। इसीलिए आज बहुत सी महिलाएं इस्लामिक कल्ट को छोड़कर प्रीटी ह्यूमन की तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़कर दूसरों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जो इस कल्ट में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रही हैं, फिर भी इस कल्ट को डिफेंड करती हैं। कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में प्रीटी ह्यूमन जी बताना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं प्रीटी ह्यूमन जी क्या जानकारी दे रही हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्रीटी ह्यूमन को सपोर्ट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। In Islam, one of the pillars of Islam is every rich Muslim who has a saving of more than the nisab level, more than 85 grams of gold, he or she should give 2.5% of that saving every lunar year in charity. If every rich human being gives a zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. As far as poverty is there, the solution is zakat. It's not killing human beings. Now, second reason may be, I'm rich, I've got money, but I want to make my son a doctor. I want to make an engineer. So I give spacing. Less children, I can take care of them better. Sister, I am the fifth child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here today. And do you know, sister, I am a medical doctor. You know, because today's society, the best profession they say is medical doctor, right? So am I a boon or a bane for society? Sister, fifth child of my parents. If my parents would have done family planning, I would have been here. But I gave up my profession of a doctor for a better profession that is spreading the truth. Allah says in the Quran, in Surah Fussilat, chapter 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites people to the Lord, to Almighty God, works righteousness and says, I am the one who submits my will to Almighty God. I chose to be a doctor because I thought it was the best profession. It is a good profession, I'm not against it. But I found a better profession. From a doctor of a body, I became a doctor of a soul. If I was a medical doctor, you wouldn't have found 10, 15,000 people here, right? You didn't come to hear a doctor of the body. You came to hear a doctor of a soul. So when I found a better profession, I changed from a doctor of a body to a doctor of a soul. So am I a boon or a bane for society? So it's a fallacy. As far as spacing is concerned, Almighty God has given a natural spacing known as lactation. डॉक्टर ऑफ बॉडी नहीं हूँ मैं, डॉक्टर ऑफ सोल हूँ। भाई ये स्पिरिचुअलिटी अपने आप को स्पिरिचुअल डॉक्टर बोल रहा है। शर्म नहीं आई इसको ये लफ्ज यूज करते हुए। और इसने बोला कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह तुमको रिस्क देगा। बच्चे पैदा करो और रिस्क की टेंशन तुमने नहीं लेनी। अमित, वो 2 आयत मैंने आपको दी थी कुरान से, वो जरा आप निकाल लें। और देखो गाइस, इसने पता क्या बोला है? इसने कहा है कि अगर मैं अपने माँ बाप का ना 5वां बच्चा हूं
2 बार उसने बोला मैं अपने माँ बाप का 5वां बच्चा हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने फैमिली प्लानिंग की होती तो क्या मैं आज आपके सामने खड़ा होता, 15,000 लोग मुझे देख रहे होते। लेकिन ये जाहिल नलायक ये क्यों भूल गया कि तुम्हें तो जिंदगी ने मौका दिया। तुम्हारे मुताबिक तुम्हारा बाप भी डॉक्टर था और काफी रिलीजियस फैमिली और काफी तुम लोगों के पास पैसा था, ठीक है, तुमको तो चांस मिल गया। अब अगर एक मुस्लिम जो ज़कात के पैसों पे पहले ही पल रहा है, सोचोगा इतना नॉनसेंस जवाब इसने दिया। और जो इससे आंसर पूछा था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, वो किसी इंडियन हिंदू ने ही पूछा था इससे। इसने ये बोला कि अगर फर्ज करो गाइस कोई ज़कात के पैसों पे पल रहा है, उसने 6-7 बच्चे पैदा कर लिए, तो क्या वो बराबर बराबर सबको दे पाएगा? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी उन लोगों को। कहां से वो अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपने गोल्स पूरे करेंगे वो बच्चे? सबकी किस्मत और सबको लाइफ की सिचुएशंस तुम्हारी तरह थोड़ी ना होंगी। जाहिल किस तरह से इसने जवाब दिया, कोई सेंस नहीं बनता इसकी जवाब का। इसने कहा अगर मैं अपने वालिदैन के घर में पैदा ना होता तो क्या मैं आपके सामने खड़ा होता? और मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, हर वीडियो में रट्टा मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। भाई तो मेडिकल डॉक्टर हो तो वही काम करो जो तुमको फिर मेडिकल में लोग करते हैं, वो करो ना जाके। अब अपने आप को स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल डॉक्टर बता रहा है ये बंदा। भाई कौन सी इस्लाम ने स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी है? फैमिली प्लानिंग की लड़की तुमसे पूछ रही है, तुम्हारा जवाब होना चाहिए था, अगर तुम एक वाकई मेडिकल डॉक्टर हो, तुम्हारा एक औरत की हेल्थ की बेटरमेंट के लिए आंसर होना चाहिए था। बट नहीं, तुमने कहा है कि ज़कात के पैसे अगर आते रहें तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा और सब बच्चों को, जितने मर्जी तुम लोग बच्चे पैदा करो, सबको रिस्क मिलता रहेगा। भाई ये कहाँ का लॉजिक है? पहली बात तो ये कि तुम्हारा ज़कात सिस्टम शिटी सिस्टम है। कौन कह रहा है कि वो बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसमें सारे गरीबों को खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है? किसने तुम्हारे जहन में ये गलतफहमी डाली है? पहली बात तो ये बताओ। इतना शिटी सिस्टम है। अगर तुम्हारा ज़कात का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता तो एजुकेशन तो बहुत ज्यादा होती दुनिया में, तुम्हारी मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती, ये जहालत ना फैलती। 3 बातें तुमने कही हैं और तीनों बातें बहुत फनी और गलत हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से इसकी वीडियोस पे रिएक्ट करने में बहुत मजा आता है। 2 मिनट लगते नहीं है इस बंदे को डिबंक करने में। आपने सुनी है ना इसकी बातें गाइस? कुछ समझ में आया इसने क्या बोला? जिस चीज को समझ में आया वो यस लिखो। ये मेडिकल डॉक्टर है वैसे, इसने शायद डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी की थी, लेकिन इसके बाप की डिस्पेंसरी थी, वो इतनी चलती नहीं थी, तो इसके बाप ने सोचा कि भाई इसमें कोई इनकम होगी नहीं, तो अमित उसको होल्ड ऑन, इधर मैं डाल। आती हूँ, आप कंटिन्यू करो बात। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाप की जो मेडिकल डिस्पेंसरी थी इधर अपना डोंगरी साइड में, तो वहां पर इसने मेडिकल की ये पढ़ाई जो है वो तो कंप्लीट कर ली थी, शायद डॉक्टर वॉक्टर बन गया होगा, लेकिन कभी डॉक्टरी प्रोफेशन में गया नहीं, क्योंकि इसके बाप की डिस्पेंसरी भी नहीं चलती थी। तो बाप ने सोचा कि भाई यहाँ बैठ के तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो ये काम करिए, मोमिन तो होते हैं जाहिल, तो इनको अपना क्या है, ये दीन का चूरन बेच ज्यादा पैसे कमाएगा, तो ये करके गया हुआ है इसमें। और बाद में इसके पास में क्या था, वो अहमद दीदात का शागिर्द बना, लेकिन अहमद दीदात को नॉलेज था थोड़ा बहुत, ये तो बिल्कुल जाहिल की तरह बातें करता है, लेकिन हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी ऐसी थी तो इसको आगे बढ़ने का मौका मिल गया, और ये इस तरह फिर PhD बना लिया, और ये करके काफी पैसे कमा लिया इसने। और बेचारे हिंदू भी हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो कभी अपना खुद का धर्म नहीं पढ़े, तो इनको कोई भी बेवकूफ बना सकता था। तो और उस समय इंटरनेट नहीं था, एक्स मुस्लिम नहीं था थे, और इस्लाम के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो जो इन्होंने फैला के रखा था झूठ, उसी के हिसाब से चल गई इसकी दुकान। लेकिन आज की तारीख में इसके 3 मिलियन या कुछ 3.5 मिलियन या उससे भी ज्यादा कितने सब्सक्राइबर मेरे को याद भी नहीं, इतने सब्सक्राइबर होके भी इसको 200-300 लोग लाइव में नहीं देखते। ये तो इसकी औकात हो गई है, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान गाली देते हैं इसको। अभी ये पाकिस्तान में गया, अपनी पूरी इज्जत का भाजीपाला करवा के आया, पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तानी गाली दे रहे हैं, दुनिया के तमाम मोमिन गाली दे रहे हैं, और एक्स मुस्लिम खुश है कि चलो इस बार इसने अच्छा कंटेंट दिया है पाकिस्तान में जाके, तो मजीद महंगा करके आए इस्लाम को। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो देखो, ये है एक मेडिकल डॉक्टर जिसने, जाहिर बात है इसने तालीम हासिल की, और
पता नहीं कैसे पास किया इसने। इस पे काफी ज्यादा मैंने आपको पता है वीडियो बनाई थी, काफी ज्यादा मेरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। जब इसने टूर किया था तब का है मेरे पास इसकी वीडियोस, आप जाके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है जी जाकिर नालायक की अकल का ठिकाना। ये है इस बंदे की अकल जिसको लाखों लोग पूछते हैं। और देखो ना, फिर जब ऐसा बंदा जिस पे इतने केसेस चल रहे हैं और पुलिस इसके पीछे है, अभी तो इसने मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान गया था, वहां से भी ये जूते खाकर आया और इज्जत इसकी जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी इसने डबो दी। तो ऐसे बंदे को तो जब यूथ फॉलो करेगी तो सोचो कितना नुकसान मिलेगा सोसाइटी को, सोचो जरा। नाइक के तो 3 बच्चे हैं, हाँ शायद एक बेटा और 2 बेटियां ही हैं इसकी, लेकिन मोमिनों से ये 10-10, 12-12, 15-15 खरगोश की तरह बच्चे पैदा करवाते हैं। इसी वीडियो में ना इसने ये बोला था कि जो चाइना और इंडिया सुपर पावर्स हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे बड़े पैदा करते हैं लोग। इसने कितनी गलत बात की ना, चाइना की इसने नाम लेके चाइना इतना आगे क्यों चला गया। इसको ये नहीं पता कि 1980 में उन्होंने अपने लॉ बदल दिया था, उन्होंने इतना सख्त रूल बनाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी का। इतनी मेन बात है। हाँ हाँ, उन्होंने मतलब पॉपुलेशन, मेरे को याद आता है बचपन में हम सुनते थे चाइना की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, और फिर उन्होंने अचानक से पूरा बंद किया कि एक से दूसरा बच्चा नहीं होगा। मैं कहती तो हूँ जब वहां पे बच्चे पैदा अगर आप दूसरा कर लेते हो ना, आपको इतना हैवी फाइन लगता है कि आप कमाते रह जाते हो और फाइन उतारते रह जाते हो। और 2015 में ये जो बैन है ना अमित, ये खत्म किया गया था और 2 बच्चों की परमिशन दी गई थी, 3 की भी नहीं दी गई थी, 2 बच्चों की परमिशन दी गई थी, क्योंकि उनको बैलेंस रखना था। और अगर चाइना जो तरक्की कर रहा है इसके मुताबिक, नालायक के मुताबिक, तो वो इसलिए थोड़ी ना कर रहा है कि वहां पे बच्चे बहुत पैदा हो रहे थे। अगर इतना ज्यादा उनको इस पॉपुलेशन से फायदा था तो वो क्यों उन्होंने वहां पे बैन लगाया अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे। इतना ये जाहिल है, ये फैक्ट्स नहीं पढ़ता, फिगर्स चेक नहीं करता, और ये जो मन में आता है ये बोल देता है। और इंडिया में भी जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में ये पहली बार लॉन्च किया गया था प्रोग्राम, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में फिर हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन इंडिया ने भी इस पे स्टेप लिया था कि कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। पॉपुलेशन तो इंडिया में वैसे चलो बढ़ी तो है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में आ रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात जो ये है, नहीं, हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की ग्रोथ रेट है वो कम हुई है और मुसलमानों की ग्रोथ रेट कम हुई है, लेकिन वो आज सबसे टॉप पे है। मुस्लिमों की जो बिल्कुल ग्रोथ ठीक, रेट है वो आपने टॉप पे चल रही है। दुरुस्त फरमाया। पॉइंट ये है कि इसने इंडिया चाइना मेंशन किया अपनी वीडियो में और इसने बोला कि क्यों इतनी पावरफुल नेशंस हैं ये, सही है। तो गलत पॉइंट इसने उठाया है, क्योंकि इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। चाइना ने भी अपने सख्त रूल्स जो हैं वो पब्लिक से फॉलो करवाए हैं, और वो तो खैर बहुत ही ज्यादा सख्त रूल्स हैं, आपको पता है कि कितना फाइन उनको देना पड़ता है। ये जाहिल बंदे ने बिना फैक्ट्स चेक किए बात की है। अब देखो, इसने बोला अपनी वीडियो में, सारी वीडियोस गाइस मैं आपको नहीं सुना सकती, बहुत लंबी बकवास है, 12-13 मिनट की है। इसने ये भी बोला था कि अगर तुम लोग बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हें क्या क्या फायदे मिलेंगे। भाई कोई फायदे नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कम बच्चे पैदा करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, रिड्यूस्ड आपका रहेगा स्ट्रेस, मोर पर्सनल फ्रीडम मिलेगी। अब एक माँ है जो 6-7 बच्चे छोटे छोटे एक ही एज के आते हैं, कुछ साल का फर्क है, 2 साल का फर्क है, कितने बच्चों की केयर कर लेगी वो एट ए टाइम, कितने बच्चे पाल लेगी वो। माँ है, उसके अब 2 हाथ हैं, उसने अपनी भी केयर करनी है, बच्चों को भी टाइम देना है, तो 1-2 बच्चे की केयर कर सकती है, वो पूरी आर्मी की केयर तो नहीं कर सकती। तो पर्सनल फ्रीडम मिलती है इससे, अगर एक मदर के सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं। सोशल बेनिफिट्स भी इससे मिलते हैं, ग्रोथ होती है कंट्री की इकोनॉमिक, जैसे पहले मैंने बोला, विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ती है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी रहते हैं, रिड्यूस्ड रिसोर्स कंजम्पशंस रहते हैं, लोअर कार्बन फुटप्रिंट रहता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन रहती है। मतलब कि ये एनवायरमेंटल पे ये जो असरात होंगे, जाहिर बात है ये पॉजिटिव रहेंगे अगर आप कम बच्चे पैदा करेंगे। आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा लोगों में बढ़ जाएंगे और बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। फिर कम बच्चे करने के और भी बहुत से फायदे हैं। पेरेंटल अटेंशन मिलता है, अगर आपके ज्यादा बच्चे होंगे तो अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आप ना एक को टाइम दे पाओगे ठीक से, ना दूसरे को, ना तीसरे को, चौथे को तो भूल ही जाओ, वो बेचारा वैसे ही कोने में लग जाएगा। और जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो भी आप बराबर बराबर सब में बांट दोगे। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी रहेंगे,
आपकी मेंटल हेल्थ आपकी भी ठीक रहेगी, फैमिली की ठीक रहेगी, बच्चों की ठीक रहेगी, सबकी ठीक रहेगी। आपका फैमिली डायनामिक बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये सब बेनिफिट्स हैं आपको अगर आपके बच्चे कम होंगे तो। और ये डॉक्टर जाकिर नालायक इन चीज़ों को, फैक्ट्स को कैसे इग्नोर करके प्रमोट कर सकता है इस चीज़ को कि आपकी दादी दादा नानी नाना पर जो पुराने ज़माने के थे वो बिल्कुल ठीक थे, वो सही करते थे, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, उनके पास इस चीज़ की रीजंस थी। और बिल्कुल ये देख लें आप, इनके हालात देख लें। ये एक डॉक्टर है जो लोगों को कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग गई भाड़ में, तुमको इस्लाम फॉलो करना है। और इसमें जितना कसूर मैं बोलूंगी ना इस्लाम और मोमिन हजरात का है, उतना ही हमारी मोमिनाओं का भी है। वो इस चीज से फुल्ली एग्री करती हैं गाइस। गाइस उनको कोई शर्म नहीं है। मैंने बड़ी मोमिनाएं देखी हैं, फेस टू फेस बात की है और इतना खुद को कंट्रोल किया है उस इमोशनल और गुस्से के मोमेंट में, इतना खुद को कंट्रोल किया है कि हाथ ना उठ जाए मेरा, गाली ना निकल जाए मेरे मुंह से। मतलब इस हद तक वो डिफेंड करती हैं इस चीज को। दूसरी शादी पे इनको कोई तराज नहीं, बच्चे पैदा करने पे इनको कोई तराज नहीं। जितनी कसूरवार इनका इस्लाम और मोमिन है, उतनी ही कसूरवार मोमिनाएं भी हैं हमारी। अमित, एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, वो लेडी वाला, दो भेजे थे मैंने आपको एंड पे, आप देखें। लास्ट स्ट्रीम पे मैंने आपको ना बताया था स्टॉकहोम सिंड्रोम का, कि जब आपके साथ जुल्म ज्यादती होती है ना और आपका ओप्रेसर आपको ओप्रेस करने लग जाता है तो आपको ना मजा आने लग जाता है। आपको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, आपको लगता है सब नॉर्मल है, मुझे पीट रहा है, मार रहा है, इट्स ओके, बिना मर्जी के मेरे साथ मुबाशरत कर रहा है, इट्स ओके, बिना मर्जी के कंसेंट के मेरे साथ बच्चे पे बच्चा पैदा किया जा रहा है, इट्स फाइन। उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसको उसके लिए ये चीज नॉर्मल बन जाती है। ये बहुत एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। और मैंने आपको ये बताया था कि 70 to 80% मुस्लिम विमेन में ये कॉमन है। अब 70 to 80% सोचो सब में ही है। 70 to 80% कोई छोटा नंबर ना समझना। अब ये मोहतरमा की बात सुने। Every time I meet a good single Muslim woman, I go home and I talk to my husband about her. I ask him if he's interested in marrying her. And the reason why I do this is two things. Number one, my husband is a great husband, and I want all the single women out there that need a husband to have a good husband. And you know what they say about a good man? Behind every great man is a great woman. Now imagine if there's 3, 4 great women behind a great man. And I'm serious about this. I want every single woman out there to have a good husband, whether it's my husband or someone else. I hate to see single women alone because I know the struggle. I see it on their faces. You see it in the statistics. It is not easy to be alone or to be a single mother. Allah created men and women, and He brought us together for a reason. We need men. Men are our leaders, inshallah. And when you have a good man, cherish him. And if you're single and you want to find a good man, or if you're married and you want to improve your marriage, go to collectivelymarried.com and read the books. Share this video so others can benefit, inshallah, and follow for more. Every time I meet शाबाश इंशाल्लाह एंड फॉलो फॉर मोर। क्या दिमागी अपंग है। हाँ, इसने ये बोला ना कि मैं अपने हस्बैंड की शादी करवा सकती हूँ, दूसरी तीसरी चौथी, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो सबको मिलना चाहिए, सब में बटना चाहिए। वाओ गाइस, को इतना मेंटल कैसे हो सकता है। इसने कहा कि मैं बाकी औरतों का ख्याल करती हूँ और मैं चाहती हूँ जितनी भी औरतें हैं वो मेरे हस्बैंड इंजॉय करें। ओह माय गॉड, क्या मजाक है। ये अपना पार्टनर ऐसे फेंक रही है जैसे वो कोई ना कैंडी है। भाई बांट लो आपस में, थोड़ा थोड़ा बांट लो, एंजॉय कर लो। तो ऐसी बहुत सी वीडियोस इनके पाकिस्तानी दिमाग मोमिनाओं का की भी है, पाकिस्तानी मोमिनाओं हाँ की भी बहुत ऐसी सी है, बहुत बहुत से सी। वीडियो पड़े हैं जो बोल रही है कि मैं एक नहीं अपने हस्बैंड के लिए और 3 बीवियां लेके आऊंगी। खुद ही बेबी बोल रही है। हाँ मुझे पता है, मेरी नजर से गुजरी थी वो भी। लेकिन ये देखे ना, अब इसके चेहरे पे स्माइल चेक करें, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है इनको कि गलत भी गलत नहीं लगता। आपको पता है मैंने कमेंट्स पढ़े इस वीडियो के नीचे, और उस वीडियो के नीचे क्या कमेंट्स थे? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कमेंट्स ये थे, गालियां थी कुछ तो इसको मिल रही नॉन वुमेन्स की तरफ से, और ये लिखा जा रहा था जैसे हम लोग अपनी स्ट्रीम्स में नहीं कहते ब्यूटी ऑफ इस्लाम, कुछ कमेंट्स ऐसे थे। और कुछ इसको कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए सॉरी फील करते हैं, तुम ट्रैप हो चुकी हो, तुम्हारा जहन, तुम्हारी बॉडी किसी के हत्थे चढ़ चुकी है। देखो ना, जब आपका माइंड ही अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके खुद के कंट्रोल में, क्या फायदा इसी जिंदगी का? क्या फायदा? और कौन सी औरतें होंगी जो इसकी ऑफर कबूल करेंगी? हम श्योर होंगी भी, हैं भी।
इसकी ऑफर कबूल करेंगी, इसके हस्बैंड के साथ निकाह फरमाएंगी, बाद में मुबाशरत फरमाई जाएगी। ये हमें सिखाएंगे कि इस्लाम स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। ये स्पिरिचुअल डॉक्टर था नलायक, उसकी बात कर रहा था कि मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ। अब हमारे ये मुस्लिम घरानों में क्या होता है, हम लोगों में ना जब बच्चा होता है 14-15 साल का, लड़की या लड़का, उसको ना ये चीज़ें नहीं पता होती। मोटी मोटी 20 से 25 बातें हैं जो रटा दी जाती हैं। उसमें से नंबर 1 टॉप पे है कूड़े वाली बुढ़िया। नंबर 2, इस्लाम में सॉरी दीन में कोई जबर नहीं। नंबर 3, तुमने अगर एक इंसान का कत्ल किया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये 3-4 बातें हैं जो कि आपने हमारी स्ट्रीम्स पे अक्सर सुना होगा, मोमिनों को भोगते हुए सुना होगा। ये ना 20-25 पॉइंट्स हैं जो रटा दिए जाते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये तब पता चलती हैं जब 14 से 15 साल के बाद बच्चा जब 18 का हो जाता है, 17 का, वो खुद पढ़ना शुरू करता है, तब उसको पता चलता है कि ये सब क्या है। और अगर तो वो इतना स्मार्ट है तो वो समझ आता है, वो फिर आगे स्टडी करता है चीज़ों को। और जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे, आपको पता है क्या फील होगा, आपको लगेगा जैसे आप ना एक दलदल में घुसते जा रहे हो। और क्योंकि आप उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो इस्लाम, आप नमाजें पढ़ रहे होते हो, कुरान, आप मुस्लिम घराने में हर वक्त आपको आसपास ऑल टाइम आपको रिलीजियस आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस्लाम से रिलेटेड आपको चीज़ें सुनाई देती हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर इतनी भर दी जाती है कि जब आप ये वाली बातें पढ़ते हो ना, 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए आपको शौक लगता है। और कई लोगों को तो कितने साल ही शौक लगा रहता है, वो पक्का डिप्रेशन में जाते हैं। और ये हर एक्स मुस्लिम की कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में वो डिप्रेशन में जाता है जब ये चीज़ें पढ़ता है। और इन जैसी मोमिनाएं हैं जिनको नॉलेज भी है, पढ़ के भी ये ला इल्मी का इजहार करती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुकी होती हैं कि खुद की ना बॉडी होती है, ना रूह होती है, ना अल्फाज होते हैं, ना पहचान होती है। ठीक है, समझ आ गई प्यारे दोस्तों? ये है लेवल, ये है इंसानियत और ये है विमेन एम्पावरमेंट। My husband is my boss. My husband is number one. If my husband tells me, hey, sit down, I'll sit down. If he tells me you can't go out with your friends today, I'm not going to go out with my friends. If he says, hey, go wash this dish for me, I'm going to go wash the dish for him. I chose this man to be the king of my life. And yes, I agree with everything he says, and I do everything he says. And I did that because I chose this man. I put him in this position of my life. And this is how I honor and take care of and love the man in my life. इसके मर्द ने ह्यूमन बीइंग से शादी की है या कोई रोबोट लेके आया? सुनो सुनो आगे क्या कहते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ किसी हो गया ह्यूमन इसमें? बीइंग से नहीं हुआ नहीं, मैं नहीं कंप्लीट बोला नहीं, लेकिन इतने में ही समझ में आ रहा है कि भैया खुद को ह्यूमन देखो ना बीइंग कितनी समझ के डिस्टर्बिंग लिए बातें करी है। अमित को वीडियो रोकना पड़ गया। अमित ने वीडियो इतना डिस्टर्बिंग इसके बयान है। पहली लाइन ही खराब थी। खैर आगे चलो बात करते हैं। So I tell women out there, you want a man in your life, you want to be happy, figure out what you would do when you are happy. Because I am happy. My husband does so many great things for me. And I would do that for him. I obey him, I respect him, and I let him be the man that he is. I chose a man that I wanted to follow. I chose someone to lead me, and that's why I will do anything for him. If he tells me jump, I'll jump. If he tells me sit down, I'll sit down. If he tells me go in the room or go up on stage, I will do either or. Anyways, that's a message for everyone out there. Love and cherish the king in your life. ये लव है इसका हस्बैंड इसको बोलेगा कूद जाता है, कूद जाएगी कहती है मेरा हस्बैंड बोलेगा बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगी, बोलेगा स्टेज पे चढ़ जाओ मैं चढ़ जाऊंगी, जो बोलेगा मैं करूंगी। और पहली लाइन क्या थी? माई हस्बैंड इज माई बॉस। व्हेन यू से योर हस्बैंड इज योर बॉस, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हाँ दे भाई, ये क्या मोमिनाओं का दिमाग चलता है। देखो ना इसने कितना अच्छा मेकअप लगाया हुआ है, वेरी नाइस लिपस्टिक, और हिजाब करके कैमरा के सामने आके फुल शिटी स्टेटमेंट्स। और ये स्लेवरी नहीं तो क्या है? और अना हक ने यहाँ बोला था मॉडर्न डे स्लेवरी। यस यस यू आर राइट, यस आई एग्री विद यू। इस हद तक इनका दिमाग है इस मोमिना का सॉरी। देखो ना, इसने कहा वो मेरा बॉस है और ब्लश कर रही है, हंस रही है और कह रही है कि लव है ये लव है गाइस। हमारे फार्म हाउस पे ना डॉग्स हैं, उनको भी अगर हम बोले ना बैठ जाओ वो बैठ जाएंगे, उनको बोलें खाना खा लो खाना खा लेंगे, उनको बोलेंगे चलो बबू करके बताओ वो बबू करेंगे,
उनको बोलेंगे स्पिन करो, वो स्पिन करेंगे। क्या फर्क रह गया एक डॉगी में और एक तुम में? क्या फर्क रह गया है मोमिना बहन? क्या फर्क रह गया? मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी इसकी वीडियो देख के, और अब फिर से मैंने देखी, अब फिर से ना बस समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।